Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So in the last practical session, we have done the performance of PN junction diode with the help of simulator using virtual lab site. So now today we have to see the second experiment, practical 2 of this subject. Now in the second experiment of this particular subject, you are having to test the performance of Zener diode. So in our theory, we have understood the concept of Zener diode and in which biasing we are using Zener diode. Can anybody tell me? Reverse bias mode. Yes, very good. So Zener diode is used in reverse bias mode. The problem in normal PN junction diode using in reverse bias mode is that once we reach or exceed the breakdown voltage, so your normal diode may get damaged due to excessive heating. So in order to avoid this situation, Zener diode is used, which is heavily doped. So again, it is while using again the breakdown voltage, means in Zener diode, if we exceed the breakdown voltage, so the voltage will remain constant. There will be increase in current. So current is going to be increased, but voltage is going to be remain constant. So that's why Zener diode is used in reverse bias mode. So what is the theory we have seen in our theory lecture? This is the diode symbol, Zener diode symbol. So Zener diode symbol is just the change in this particular bar. It is having a shape of Z. This is anode and this is cathode, symbol of Zener diode. Now this is your practical circuit diagram, practical setup which you have to made arrange while if you are performing the practical in labs. So the same thing, same circuit diagram we are able to mount it in on breadboard. But somehow the situation does not permit to go in our practical lab. But somehow we are able to do this experiment using with the help of different simulator circuit. So today also we are going to perform the same experiment, the experiment number 2, but using some different simulation part, because in virtual lab the as per your circuit diagram, as per your observation, it is not given for Zener diode characteristic. So in today's lecture we are going to see some different simulation aspect for performing this experiment. ओके तो बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो आज हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो किसके लिए परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस ऑफ जेनर डायोड के लिए परफॉर्म करना है। तो जेनर डायोड के बारे में हम लोग ने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जेनर डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्स बायस मोड में। और क्या होता है जेनर डायोड में, जब आपका ब्रेकडाउन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्सीड हो जाता है तो वहाँ पे आपका वोल्टेज ठहर जाता है और क्या चीज़ बढ़ती है, आपकी करंट तेज़ी से बढ़ती है, करंट शार्पली इंक्रीजेस। तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट और जो भी अमाउंट पे इंक्रीज होगा वो किस में इंक्रीज होगा, करंट में इंक्रीज होगा। तो ये सिंबल ऑफ जेनर डायोड हमने अपनी थियरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और ये आज के एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम है, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है। इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे आपको दोनों चीज़ के लिए मेजर करने के लिए बोला गया है, जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस ऑल्सो और जेनर डायोड इन रिवर्स बायस ऑल्सो। तो फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड नॉर्मल पीएम जंक्शन डायोड के जैसा काम करता है। जब तक का कट इन वोल्टेज नहीं आएगा करंट फ्लो नहीं होगा। वंस द कट इन वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड रीच, जब इस डायोड के अक्रॉस में कट इन वोल्टेज आ जाता है तो फिर करंट इंक्रीज होना चालू हो जाता है, मीन्स करंट कंडक्शन चालू हो जाता है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में जेनर डायोड भी जो है वो सेम वर्क करता है आपके नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा, बट द केस इज डिफरेंट फॉर रिवर्स बाइजिंग मोड। In reverse biasing mode, the breakdown voltage, once the Zener breakdown voltage reach, now the voltage will remain constant. Now any change if you increase in the reverse biasing reverse supply, that change is going to be represented in the form of current. So current increase होगा, आपका वोल्टेज उतना की उतना ठहरा रहेगा जितने रेटिंग के लिए आपका डायोड बनाया गया है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट डायोड्स को बनाया जाता है अलग अलग रेटिंग के हिसाब से। कोई डायोड का रेटिंग हम लोग रखते हैं 5 वोल्ट, कोई डायोड का रेटिंग रखते हैं हम लोग 7 वोल्ट। तो जो आप रेटिंग के हिसाब से आप रखोगे
उतना वोल्टेज उतना कांस्टेंट रखेगा। अब जो भी इंक्रीज होगा सप्लाई का, वो इंक्रीज आपको किसके फॉर्म में दिखेगा, आपको उसके करंट के फॉर्म में दिखेगा। वोल्टेज उतने रेटिंग के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं होगा, बट द चेंज इज गोइंग टू बी अपियर इन द फॉर्म ऑफ करंट ओनली। तो करंट के फॉर्म में आपको इंक्रीज इन चेंज दिखाई देगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर। ये आपका फॉरवर्ड बाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बाइज। तो फॉरवर्ड बाइज में सबसे पहले ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज के पास क्या कनेक्ट किया हुआ है, आर रजिस्टर 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का रजिस्टर है। तो इसके बाजू में करंट को मेजर करने के लिए आपका मिली एम्पियर है, यानी एम मीटर यूज हुआ है। एम मीटर का रेंज दिया हुआ है 0 to 200 मिली एम्पियर का एम मीटर का रेंज वाला आपको एम मीटर यूज़ करना है, जहाँ पे करंट मेजर होके दिखाई देगा। और फिर आपका ये जेनर डायोड प्लेस किया हुआ है। तो जेनर डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग किस तरीके से हुई है, इस तरीके से जब आप पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे एनोड को, और नेगेटिव कनेक्ट करोगे कैथोड को। तो जो नेगेटिव है वो कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है, किधर पे, ग्राउंडिंग में किया हुआ है। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया जेनर डायोड का। और आप इस जेनर डायोड के अक्रॉस में क्या मेजर कर रहे हो, वोल्टेज। तो वोल्टेज का रेंज जो दिया हुआ है 0 to 20 वोल्ट, इट इज वोल्ट मीटर। तो आप पैरेलल में वोल्टेज मेजर करोगे जेनर डायोड के अक्रॉस में, और यहाँ पे सीरीज में क्या मेजर होगा, करंट मेजर होगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम ऑफ योर जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बाइजिंग। तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग का सर्किट डायग्राम है। सिमिलर डायग्राम इज ऑल्सो गिवन फॉर रिवर्स बाइजिंग ऑल्सो। तो जेनर डायोड इन रिवर्स बाइस, नाउ क्या किए रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं किए, जस्ट आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दी। तो इफ यू ऑब्जर्व इन दिस टू डायग्राम, the polarity of battery is changed. In the upper side you are having positive connected to plus sign, negative connected to negative sign. But for reverse biasing, if you observe it properly, you have just changed the polarity of this battery. So the plus is connected to the cathode of the Zener diode, and negative terminal of the battery is connected to the anode of the Zener diode. So in this way just you have changed the polarity of the battery, and it is going to be operate in reverse bias mode. तो पोलैरिटी को चेंज करके हम लोग ने जेनर डायोड को क्या कर दिए, यहाँ पे रिवर्स बाइजिंग अप्लाई कर दिए। तो ये दोनों भी सर्किट डायग्राम हम लोग एक सिमुलेटर सर्किट पे ऑब्जर्व करेंगे, और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या करंट मिलता है, क्या वोल्टेज मिलता है, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो इन फॉरवर्ड बाइजिंग यू विल गेट फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। इन रिवर्स बाइजिंग यू विल गेट रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ दिया हुआ है इन योर ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपको नज़र आएगा वो मेजरमेंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट है। यानी जब आप जेनर डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग अप्लाई कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज, व्हाट इज़ द फॉरवर्ड करंट। सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के आपको फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट कितना मिल रहा है वो रीडिंग लिखना है। और सिमिलरली जब आप रिवर्स बाइजिंग अप्लाई करोगे, तो रिवर्स में जो सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करके जेनर डायोड के अक्रॉस में रिवर्स वोल्टेज कितना है और कितना रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, वो दोनों की रीडिंग नोट डाउन करना है। तो द ऑब्जर्वेशन टेबल इज सेम, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट को सिमुलेटर के थ्रू देखेंगे, सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे क्या सिमुलेशन अभी प्रीफर करना है हम लोग को। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको वेरियस वेरियस सिमुलेटर सर्किट्स के नाम्स आपको नज़र आएंगे, दिखाई भी देंगे। जैसे कि मैं खुद ही ट्राई कर रहा था, सर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे वर्चुअल लैब में इसका प्रैक्टिकल का जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक का मुझे प्रॉपरली नज़र नहीं आया हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। वहाँ पे उनका किया हुआ परफेक्ट है, लेकिन वो सब अदर वे से उन लोग ने मेजर किया, कुछ अलग किए। एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को जो सर्किट डायग्राम में हमारी मैनुअल में दिया हुआ है, तो एज पर डैट मैनुअल हम लोग को वो सिमुलेशन ढूंढना है, वो सिमुलेशन करना है। तो उसके लिए मैंने सर्च किया, आप भी नेट पे सर्च करोगे तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेटर सर्किट। जस्ट हैव रिटन इन द साइट सर्चिंग, बाद में यूज़ करने वाला हूँ मल्टी सिम करके। यस, सो दिस इज़ द मल्टी सिम। आप इसको मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन दिस साइट विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टी सिम। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अवर एक्सपेरिमेंट। तो ये सर्किट डायग्राम देखो जेनर डायोड का बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस हमको करना है तो हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर।
आप ओपन सर्किट में जाएंगे, तो ओपन सर्किट में जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट लॉग इन, यू विल नॉट बी एबल टू सेव और कॉपी दिस सर्किट। तो हम लोग सेव और कॉपी नहीं कर पाएंगे, बट यू आर एबल टू परफॉर्म ऑनलाइन। तो हम लोग इसको ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप लॉग इन करते हो तो सेव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए यहाँ पे जाना है। अगर आप ऐसे ही जाना चाहते हो, ऐसे ही परफॉर्म करना चाहते हो, तो ओपन एनीवे करके आप ऐसे ही परफॉर्म करो। ये मल्टी सिम करके आपका सिमुलेशन ओपन होगा, जहाँ पे ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ रहेगा, और फिर हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये मल्टी सिम करके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप ये जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम बना सकते हो, और करंट और वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपके सामने ये सर्किट डायग्राम ओपन हो गया है इधर पे। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे किसका, ये फॉरवर्ड बैच का। तो फॉरवर्ड बैचिंग का जैसा सर्किट डायग्राम है, आप वैसा ही सर्किट डायग्राम वहाँ पे भी लेके आओ, वहाँ पे भी बनाओ, वहाँ पे प्लॉट करो। अब यहाँ पे सिमुलेशन में करंट और वोल्टेज मेजर कर देगा, एक ही डायरेक्ट वहाँ पे मीटर दे दिया जो डायरेक्टली करंट और वोल्टेज की रीडिंग दिखाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे प्लेस कर दो सीरीज में, वो दोनों चीज़ आपको दिखाएगा। पैरेलल के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करके दिखाएगा, और सीरीज का करंट मेजर करके दिखाएगा। खाली ये डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग कैसा अलग अलग दो चीज़ मेजर कर रहे हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए अलग से वोल्ट मीटर लगाए, करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने अलग से करंट को लगाए। बट इन दिस सिमुलेशन डायग्राम में, इन दिस सिमुलेशन यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है V और A, तो ये V और A दोनों भी रीडिंग दिखा रहे हैं, वोल्टेज और करंट। तो जो करंट की रीडिंग है वो उसके सीरीज के हिसाब से ही मेजर कर रहा है, और जो वोल्टेज की रीडिंग है वो उसके पैरेलल के हिसाब से ही रीडिंग नोट डाउन करके दिखा रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन दिस डायग्राम, डायग्राम इज सेम। ये रजिस्टर है 1 किलो ओम का, और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई वोल्टेज अभी कितने वोल्ट का दिखा रहा है, 5 वोल्ट का। तो हम लोग को ये सप्लाई वोल्टेज वेरी करना है, और वेरी करके हम लोग को इस जेनर डायोड के अक्रॉस में कितना फॉरवर्ड वोल्टेज, कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, वो मेजर करना है हम लोग को। तो दिस इज एज पर आवर सर्किट डायग्राम ओनली। ये जेनर डायोड का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बैटरी ऑफ द सप्लाई से कनेक्ट है, और ये जो जेनर डायोड का नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड। तो ये जो सर्किट डायग्राम जो बनाया हुआ है, ये सर्किट डायग्राम कौन सा बनाया हुआ है, इट इज़ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस ही आपका ये बनाया हुआ है, फॉरवर्ड बायस में आपका ये जेनर डायोड का बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, इसको रन करना है, रन करके करंट और वोल्टेज मेजर करना है बाय वेयरिंग दिस सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज को आपको मेजर करते हुए, सप्लाई वोल्टेज को मेजर करते हुए आपको इधर पे उसका करंट और वोल्टेज का रीडिंग नोट डाउन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे आपको प्ले का बटन ऊपर दिया हुआ है, दिस रन सिमुलेशन। तो ये जो प्ले का बटन है ट्राइंगल फॉर्म वाला, राइट एरो मार्क वाला, तो राइट एरो मार्क वाला ये जो प्ले का बटन है, आप इसको क्लिक करके आप अपने सिमुलेशन को रन कर सकते हो। तो ये आपका सिमुलेशन रन हो गया। रन हो के अभी ये जो फॉरवर्ड बायसिंग में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, वो दिखा रहा है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, फॉरवर्ड वोल्टेज इज 577.46 मिली वोल्ट, और फॉरवर्ड करंट जो है अभी ये सिचुएशन में सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट दे के आपका करंट कितना है, 4.4225 मिली एम्पियर। तो ये जो सिमुलेशन है ये फॉरवर्ड बायसिंग का है। यहाँ पे मैं आपको इसका ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अभी यहाँ पे इसको वेरी करोगे सप्लाई वोल्टेज। तो अभी सप्लाई वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट के हिसाब से कितना फॉरवर्ड वोल्टेज, कितना फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, वो आपको इधर पे रीडिंग दिखा रहा है। आप ये स्लाइडर को चेंज करके अपना फॉरवर्ड वोल्टेज वेरी करो। तो इन आवर एक्सपेरिमेंट, इन आवर मैनुअल एज इट इज शोन कि आप कितने से कितना वेरी करो, और 0 से 30 वोल्ट के रेंज में वेरी करो। तो 0 से 30 वोल्ट के रेंज में आप वेरी कर सकते हो। तो आप ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ और वेरी करो 0 से 30 वोल्ट के। तो देखो अभी मैंने 0 वोल्ट कर दिया है। तो 0 वोल्ट करने में आपको क्या मिल रहा है, 0 वोल्टेज मिल रहा है, 0 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ा के आपको क्या हिसाब से कितना वोल्टेज, कितना करंट जो है वो रीडिंग नोट डाउन होते जाएगा, वो आपको दिखते जाएगा। तो इनिशियली आपको पता है स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, तो स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो, तो वो फ्लो होता जाएगा। मैं अभी सप्लाई वोल्टेज कितना कर दिया हूँ, नाउ सप्लाई वोल्टेज आपका 2 वोल्ट हो गया है। तो 2 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पे क्या वोल्टेज है, उस फॉरवर्ड वोल्टेज वो रीडिंग है, फॉरवर्ड करंट क्या है वो रीडिंग है। तो यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज वेरी कर सकते हो। नाउ सप्लाई वोल्टेज 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट में कितना फॉरवर्ड वोल्टेज है, कितना फॉरवर्ड करंट है, वो रीडिंग आपको इधर पे दिखाई दे रहा है, रीडिंग नोट डाउन हो रहा है।
इसी तरीके से आप बढ़ाते जा सकते हो, ये स्लाइडर को वेरी करो, चेंज करो। तो आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो एज वी आर इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज में आपको जो रेंज, जो उसका जो एक टाइम है, जो कट इन वोल्टेज है, वो हिसाब से फिर उधर पे कांस्टेंट हो जाएगा इतना। आप बढ़ा सकते हो, आपको ज़्यादा वोल्टेज, अभी यहाँ पे मैक्सिमम 10 आ गया, तो अभी फॉर एग्जांपल आपको 30 तक जाना था, तो कैसे जाएंगे 30 तक जाने के लिए? तो ये ऊपर +10 करके मार्क किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस +10 आप इंटू 10 कर सकते हो, सीधा वोल्टेज बढ़ सकता है। तो ये 49 वोल्टेज हो गया, तो आप वापस से कम पे लेके आ जाओ। तो यहीं से आप इसको पहले से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सिंपली आपको जो भी रीडिंग मिल रहा है आपको नोट डाउन करना रहेगा। व्हाट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, आप ये रेंज में वेरी करो, 0 to 30 वोल्ट के रेंज में वेरी करो। एंड वॉट एवर द फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट यू आर गेटिंग, जस्ट नोट डाउन द रीडिंग, दैट ओनली। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन बताया, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। अभी जस्ट आपको क्या करना है, ये सप्लाई वोल्टेज का, बैटरी सप्लाई को क्या करना है, चेंज करना है, उसकी पोलैरिटी को चेंज करना है। तो पोलैरिटी को चेंज करना है मतलब आपको इसको रिवर्स करना है। तो अभी जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप चाहो तो इसको पहले यहाँ से कट करो, ये कट करने का घुमा के, क्रॉस घुमा के यहाँ से आप इसको ऐसा रिमूव कर दिए। ओके, आप एडिशनली यहाँ से लेके आ सकते हो। आपको जो चाहिए सप्लाई वोल्टेज का जो पूरा सोर्स है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारे वोल्टेज सोर्स का दिया हुआ है इधर पे। तो हम लोग को जो चाहिए वो डीसी वोल्टेज चाहिए, वीसीसी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस डीसी वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद अब आप इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि आपको ऊपर नेगेटिव रखना है, नीचे पॉजिटिव रखना है। तो रोटेट कर दो, विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशन आपने रोटेट करके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी लेके आ गए, नीचे पॉजिटिव पोलैरिटी लेके आ गए। अब देखो इसका कनेक्शन, तो जब आप ये पॉइंट की तरफ लेके जाओगे, ये जब आप इसके टर्मिनल के एंड के कोने की तरफ लेके जाओगे, तो आपको एक पिन करके नजर आएगा, पिन करके। अभी यहाँ पे देखो ये पिन जो मार्क आया, इसको आपको लेके जाना है, ये इधर पे इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देना है, तो ये आपका कनेक्शन हो गया। ओके, इसी तरीके से फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वही कनेक्शन करना है। आपकी चॉइस है, आप कैसा भी कहाँ से भी लेके जा सकते हो। ये आपका कनेक्शन हो गया इधर पे। तो ये हम लोग ने क्या किया, अभी रिवर्स बाइजिंग में इसकी पोलैरिटी को चेंज करके कर दिया। आप इसको चाहे तो थोड़ा नीचे ले सकते हो प्रॉपर। ओके, सो ये आपका सिमुलेशन डायग्राम हो गया ना। ये रिवर्स बाइजिंग में आपका ये हो गया, सप्लाई आपने जो कनेक्शन जो था आपने रिवर्स बाइजिंग अप्लाई कर दिया ना। अब आप इसको रन करके आप वापस से अपना ऑब्जर्व कर सकते हो इन रिवर्स बायस मोड। तो ये 5 वोल्ट का रिवर्स बायस में अभी वोल्टेज कितना है, -4.993, और करंट कितना है, -6 पॉइंट। मुझे आपको एक चीज़ यहाँ पे बस एक क्लियर कराना है, ये जो जेनर डायोड है, रिवर्स बाइजिंग का ही तो मेन रोल होता है। हम लोग जेनर डायोड को पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, मेन रिवर्स बाइजिंग के लिए पढ़ते हैं। तो ये जो जेनर डायोड डिज़ाइन किया हुआ है, इसका रेटिंग कितना दिया हुआ, 7.50, यानी 7.50 इज द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो 7.50 पे ये वोल्टेज उतना रुक जाएगा, ठहर जाएगा। अब जो भी आप इंक्रीज करोगे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज, उसका जो इंक्रीज है वो किस में दिखाई देगा, करंट में दिखाई देगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से अभी अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको इसको एकदम बेटर तरीके से समझाता हूँ कि पहले इनिशियली 0 करूँगा, 0 करके तब आपको इधर पे समझाऊंगा। तो ये सिमुलेशन को मैंने रन किया है, और मैं अभी स्लाइडर पे जाऊँगा। स्लाइडर, स्लाइडर, यस। तो ये 5 वोल्ट का जो इस पर क्लिक करोगे तो स्लाइडर आ जाएगा आपका। तो मैं पहले इसको 0 पे लेके जाता हूँ। नाउ इनिशियली मैंने इसको 0 पे रखा है। नाउ 0 पे आपको 0 दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आप इंक्रीज करो 0 to 30 वोल्ट के रेंज में रिवर्स सप्लाई वोल्टेज को। तो आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से आप इंक्रीज करो, इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको वहाँ पे भी इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। वोल्टेज कितने पे कांस्टेंट होने वाला है, 7.50 पे। तो जब 7.50 आ जाएगा तो वोल्टेज उतना ही उतना रहेगा,
और फिर आप सप्लाई वोल्टेज कितना भी बढ़ाओगे तो वो सप्लाई वोल्टेज का जो इफेक्ट है वो किस पे दिखाई देगा, सिर्फ करंट पे दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको इंटू 10 भी कर सकते हो, इंटू 10 करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये इंटू 10 कर दिया अभी मैंने। तो अभी देखो मैंने सप्लाई वोल्टेज कितना किया है, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको देखो जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, -7.42, और करंट कितना मिल रहा है, -571.15 माइक्रो एम्पियर। तो मैं अब यहाँ से रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ये 8 वोल्ट पे था, अभी भी इंक्रीज करते जा रहा हूँ। अब देखो मैंने कितना कर दिया, 15 कर दिया ना। 15 करने पे ये वोल्टेज आपको उतने पे ही दिख रहा है, -7.48, यानी वो -7.50 का जो रेटिंग का जो डायोड है, वो डायोड के हिसाब से वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। अब आपको देखो करंट पहले माइक्रो एम्पियर में था, कितने पे आ गया, मिली एम्पियर पे आ गया। तो देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट बट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। मैं और भी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, 21 पे कर दिया। तो 21 पे भी देखो मेरा सप्लाई अपना रिवर्स वोल्टेज कितना है, -7.49, यानी -7.5 की रेंज में ही है। अब क्या बढ़ रहा है, क्या है, करंट बढ़ रहा है, करंट आपका इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते थे। तो रिवर्स बाइजिंग में आपका वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। देखो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं कितना भी बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी इंक्रीज इन द करंट। आपका करंट होते जा रहा है। मैंने 70 वोल्ट तक लेके गया, हम लोग हालांकि 30 वोल्ट तक का ही रखा था, इन द रेंज ऑफ 30 वोल्ट। तो 0 टू 30 वोल्ट के रेंज में आप बढ़ा के आप देखोगे तो मैंने 27.5 वोल्ट रिवर्स सप्लाई वोल्टेज किया हूँ, तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट -7.5। नाउ द करंट इज अप टू 20 मिली एम्पियर। तो ये चीज़ है, आपका ये एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग को यहाँ पे रीडिंग नोट डाउन करना है। तो रिवर्स बाइजिंग में आपका रिवर्स में कितना सप्लाई बढ़ाने के बाद, यहाँ पे सिर्फ आपको रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट लिखने बोला है, सप्लाई वोल्टेज का कोई यहाँ पे रीडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली खाली आपको जो रिवर्स में जो आपको वोल्टेज मिल रहा है तो कितना करंट मिल रहा है वो रीडिंग लिखते जाना है। तो इन दिस वे आप यहाँ से सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे तो रिवर्स का वोल्टेज ये ऊपर है और रिवर्स का करंट ये नीचे। ये दो रीडिंग आपको नोट डाउन करना था। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, समझ समझ में आया आप लोग को? ओके, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई है यस। ओके, तो आई होप मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया। तो ये मैंने मल्टी सिम सिमुलेशन यूज़ किया है, ये ऑनलाइन किया है। इसको भी आप लोग अपने डायरेक्टली मोबाइल में भी कर सकते हो। मोबाइल में आप डायरेक्टली जाओ तो मोबाइल में आपको ये ऑनलाइन पूरा ये अवेलेबल होगा। आपको कुछ भी चेंज करना है तो चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से रन करो एंड यू आर एबल टू टेक द रीडिंग, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ से मैं स्लाइडर से क्या कर रहा हूँ, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज को वेरी कर रहा हूँ। तो रिवर्स सप्लाई वोल्टेज वेरी होके क्या रिवर्स वोल्टेज है, क्या रिवर्स करंट है, वो रीडिंग आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल योर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यही था। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है तो आपको वही लिखना है, 7.5 वोल्ट जो रेटिंग का डायोड है वही लिखना है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड, उसको मेजर करने के लिए आपको क्या बोला है, वी एफ अपॉन आई एफ। तो कोई भी रीडिंग का फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट का रेशियो ले लो, दैट विल गिव यू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड। तो फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट का रेशियो यू विल गेट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको 7.5 वोल्ट दिख रहा है, 7.5 वोल्ट दिख रहा है। तो दिस इज ऑल योर एक्सपेरिमेंट। फिर इंटरप्रिटेशन है, कंक्लूजन है, फिर क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखना रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेनर वोल्टेज फॉर गिवन जेनर डायोड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेनर वोल्टेज, तो जेनर वोल्टेज कितने का है इसका, 7.5 वोल्ट का है जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट फॉर अ गिवन जेनर डायोड। तो रिवर्स बाइजिंग में कितना मैक्सिमम करंट मिल रहा है जब 30 वोल्ट तक। तो आप सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट करो, जो रिवर्स करंट मिल रहा है आपको मैक्सिमम वो आपको लिखना है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट। What is the effect on Zener voltage across Zener diode and current flowing through it? When reverse voltage across it, it is more than। तो आपको ये बताना है कि क्या इफेक्ट होता है voltage across Zener diode and current flowing through it when Zener voltage across it is more than breakdown voltage। तो जब Zener diode के across का voltage more than breakdown voltage होगा तो क्या इफेक्ट होगा, what will be the effect। तो वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपको वही लिखना है, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी शार्प इंक्रीज इन द करंट, करंट विल इंक्रीज रैपिडली। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा लेकिन करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा।
what portion of Zener diode characteristic is most useful for voltage regulator application? तो कौन सा Zener diode का characteristic मोस्टली यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए? तो वो पोर्शन जहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो वो उसको बोलते हैं जेनर रीजन। तो आपको आंसर में वही लिखना है व्हाट पोर्शन, तो वो कौन सा पोर्शन है? तो जेनर रीजन of the Zener diode characteristic is most useful for voltage regulator application। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको डिक्टेट कराया। ऑब्जर्वेशन की रीडिंग कैसे नोट डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेशन, मैंने आपको वो एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप यू मस्ट बी हैव अंडरस्टूड। आपको फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से ज्वाइन करो, स्टे सेफ, स्टडी वेल एट होम। Thank you very much.